नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, न्यूयॉर्क के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमगियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। एंड फॉर आवर व्यूअर्स इन चाइना, नी हाओ. For our viewers in Japan, konnichiwa, Pradeep ji. Abariako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So प्रदीप जी, ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो अभी उन्होंने 25% टैरिफ अनाउंस किए हैं, Yes. उनको भी बढ़ा देंगे अब वो हिंदुस्तान के एकदम बढ़ाने वाला सर। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ क्या उनकी दुश्मनी मालूम नहीं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि असल में दुश्मनी कुछ और है। ये दुश्मनी इज नॉट रिलेटेड टू टैरिफ, इट इज रिलेटेड टू आवर अटैक ऑन द रहीम यार खान एंड नूर खान बेस। यस यस यस, उसके ऊपर वो जो किराना हिल्स के ऊपर हम लोगों ने अटैक किया था, यस 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 यस, ये उसकी वजह से कहा ये जा रहा है। बिकॉज एनर्जी एज दिस द यूरोप has been taking energy from Russia like nothing. Sir, If as they far don't- as gas is If concerned, they don't fuel the war, they are fueling the war for Russians. India is doing it. India is doing it. That's what he claims. सर जितना हम लोग ऑयल एक महीने में खरीदते हैं, यूरोप एक दिन में खरीदता है। Yes, yes. तो मेरा ये कहना है कि ट्रम्प साहब किसकी बात कर रहे हो। दूसरी चीज, इंडिया ने रशिया से ऑयल कब खरीदना शुरू किया? वी यूज्ड टू बाय ओनली 2% ऑफ आवर ऑयल फ्रॉम रशिया। उसके बाद ये अमेरिकन केम अलोंग एंड सेड कि इफ टॉप प्राइस का अगर आप कैप रख लें, उसके नीचे से अगर आप खरीदेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप जरूर खरीदिए फ्रॉम रशिया, सो दैट ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड वुड रिमेन स्टेबल। दैट्स व्हाट हैपेंड। So in effect, it is the Americans who advised us, that is India, to buy oil from Russia. बिल्कुल, बिल्कुल. In any event, right now, there's been pushback as far as India is concerned. We have said thank you very much, but no thank you. We are not going to be bullied. हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आपको जो खड़ना हो, जो करना हो कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ये भी अब सामने बात आ रही है, ईरान हैज ऑफर्ड ऑयल टू इंडिया। दे सेड यार वापस आओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? Iranian oil, by the way, is the cheapest, and that is what suits us, by the way. Yes. हमारी refineries में जो Iranian crude oil है, which is the best for all of us. Yes, yes, yes. So in spite of all the American sanctions, big deal. And the army is given a statement that you have never been with us. All the time you have supported Pakistan in all the wars, even till 1971. That's right, even now. And what is the guarantee? And why should you toe the line? Why should anybody toe the line? India और स्वदेशी वाले पुकार जो वाराणसी में गए थे, काशी में, he said स्वदेशी. That's right. Right from the smallest things in your house to everything, every Indian should think about Swadeshi, and he'll protect the farmer's interest. That's the most important thing. Prime Minister Modi said, we will never compromise with the farmer's interest of our yes, farmers. yes, That's yes, right. yes. Let's go straight across to our guests. We have Sameer Bhagre Saab from the BJP. Bhagre Saab, namaskar. नमस्कार सर। नमस्कार. Gopal Tiwari ji from the Congress. Gopal Tiwari ji, namaskar. Dwivedi ji from the Shiv Sena. Dwivedi ji, namaskar. जय श्री राम। Jai Shri Ram, sir. Jai Shri Ram. हर हर महादेव। हर हर महादेव. First of all, Sameer Bhagre Saab, congratulations to your daughter. I believe she's done very well indeed. जबरदस्त सर, क्या माल है सर। वो महाराष्ट्र में she was actually felicitated, Pradeep ji, as you know, by Chief Minister Devendra Fadnavis Yes, himself, because I did and see Chief it. Justice Gawai Saab was also there. Anyway, congratulations again, sir. मुबारक हो आपको। Sameer Bhagre Saab, we are so proud of our little girl. She has done so well, really and truly wonderful. I feel so good, very frankly. Sameer Bhagre Saab, today I will reverse the order. I'll start with you. सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। Sameer Bhagre Saab, you are also a chartered accountant. You understand economy, you understand export, import, and so on and so forth. आज ट्रम्प साहब ने एक नया इंटरव्यू दिया है टू अ यूएस बेस्ड मीडिया नेटवर्क। उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया, आई विल इंक्रीज द टैरिफ्स ऑन इंडिया अगेन विद इन अनदर 24 आवर्स। 24 घंटे में और टैरिफ्स में इंक्रीज करने वाला हूं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रम्प्स एंगर अगेंस्ट इंडिया? हिंदुस्तान के खिलाफ ट्रम्प साहब इतने गुस्सा क्यों हैं? क्या हो गया इनको? आप बताएंगे सर भागरे साहब। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब का गुस्सा कई चीज़ों की वजह से है। एक तो पहले है कि वो चाहते थे कि अपना जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने जो अटैक किया, और ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से सुपर सक्सेसफुल रहा, और सीज फायर के बारे में क्रेडिट लेने के लिए जैसे कांग्रेस पार्टी ने
कांग्रेस पार्टी के जो ट्विटर हैंडल्स आप देखेंगे तो गिनते थे कि ट्रम्प साहब ने कितनी बार कहा, तो 29 या 30 बार कहा ऐसे कांग्रेस पार्टी कहती है, मैंने ट्रैक नहीं किया। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जब डिबेट था तो उन्होंने साफ कहा कि दुनिया का कोई भी लीडर इसमें इन्वॉल्व नहीं था। दुनिया का कोई भी लीडर मतलब उसमें ट्रम्प साहब भी आ गए। दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने जो कंसेशंस हमारे सरकार से मांगे थे ट्रेड डील में, देखिए प्रदीप जी और राजीव जी, ट्रेड डील इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। आपको आपके देश का हित पहले ध्यान में रखना है। तो आप इंडिया ने ट्रेड डील का ट्रम्प साहब से क्यों एग्री नहीं कर रहे? बिकॉज ही वांट्स दैट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर जहाँ है वो सेक्टर ओपन कर दिए जाए। तो ओपन करने के बाद हमारे जो आज इतनी बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इतने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, सो दे विल गेट अफेक्टेड। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कन्विंस द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सर ट्रम्प साहब जो करते जा रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो आज देखिए टैरिफ्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि हमारे भी देश में उनके कंपनीज को बहुत कंसेशनल चीज पे एंट्री मिले। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प साहब अगर टैरिफ अपने इंडियन प्रोडक्ट्स पे बढ़ा रहे तो जो वहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान से आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो यूएस में इंपोर्ट हो रहा है उसकी एक दिन में कोई वो फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यूएस पब्लिक ऑल्सो इन अ बिगर वे बिकॉज, और उनकी और एक तीसरी प्रॉब्लम ये है जो वो खुद बता रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट इज अ डुप्लिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। आई कैन से कि आज आप बोल रहे हैं कि आप रशिया से क्यों ऑयल खरीद रहे हो, आज आप बोल रहे हैं आप रशियन एनर्जी क्यों खरीद रहे हो। तो जब आपका प्रॉब्लम है कि आप यूएस करके रशिया से ट्रेड कंटिन्यूस आपका इंपोर्ट चल रहा है, यूरोपियन यूनियन का चल रहा है, तो आप ऐसा हमको दिखाना चाह रहे हैं कि भाई यूक्रेन में आप वॉर फंड कर रहे हैं, तो फिर यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। तो देखिए ट्रम्प साहब ने पहले बहुत फैनफेयर में अनाउंस किया था कि हम रशिया और यूक्रेन का सीज फायर करा लेंगे। उन्होंने जेलेंस्की को भी बुलाया। ही सेड पुतिन इज अ वेरी गुड फ्रेंड बट ही कुड नॉट डू दैट। और हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान अपने टर्म्स पे सीज फायर पाकिस्तान को घुटने टेक के करवाए। सो आज ये देखिए कि अननेसेसरीली हमारी जो संयमी सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, दे हैव नॉट रिएक्टेड बट दे हैव गिवन अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट व्हिच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट। But Bhagir Saab, I'd like to stop you here. करेगा ना सर? Bhagir Saab, I'd like to stop you. काम नहीं कर रहे हैं। Bhagir Saab, one second. This is for the information of our viewers. हम रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं ना, रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं एक महीने में, यूरोपियन यूनियन उतनी ही एनर्जी यानी गैस खरीदती है रशिया से एक दिन में। द यूरोपियन यूनियन बाइज equivalent amount of gas or energy from Russia in one day which we buy in a month. So I think that's a red herring. Let's be very clear. वो जान करके रशियन ऑयल का। लेकिन यहां पर एक और चीज बहुत बढ़िया हुई है, मैं चाहूंगा आप उस पर रिएक्ट करें बिफोर आई गो टू गोपाल तिवारी साहब। सर द इरानियंस, जो ईरान से हम पहले ऑयल खरीदा करते थे, इट वाज द चीपेस्ट ऑयल, इट यूज्ड टू सूट अस। हमारी रिफाइनरीज जो हैं दे आर फाइन ट्यून्ड टू इरानियन क्रूड ऑयल। नाउ द इरानियंस आर द फर्स्ट बाय द वे हु हैव एक्चुअली सेड वी सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट अमेरिकन इंपीरियलिज्म। माय पॉइंट इज इंडिया via BRICS and other associations should, I think, renew trade contacts with Iran. Do you think that's a possibility? देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या डोमेस्टिक सिचुएशन हो, मेरा ऐसा मानना है कि मोदी साहब इज नोन फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अभी देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि यूएस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। इट इज द पावरफुल कंट्री इकोनॉमी वाइज ऑल्सो, मिलिट्री वाइज ऑल्सो। सो हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम यूएस का कोई ऐसा, यूएस इज नॉट अवर एनिमी कंट्री और हॉस्टाइल कंट्री। यस देयर आर सर्टन डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग दिस ट्रेड एग्रीमेंट, तो हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सॉर्ट आउट करते वक्त हम कोई वहां पर हमारे इंटरेस्ट को या एग्रीकल्चर को या छोटे एंटरप्रेन्योर्स को कॉम्प्रोमाइज करके। और आपने जो ईरान का पॉइंट निकाला, सर ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। We are in talks with Iran on many subjects. हमारा पोर्ट भी वहाँ पर डेवलप हुआ है। सो और ईरान ने जब पाकिस्तान और हमारा जो ये चल रहा था तब ईरान ने भी भारत का साथ दिया है। तो ईरान इज डेफिनेटली अ वेरी वैल्यूएबल पार्टनर, रशिया इज अ वेरी वैल्यूएबल पार्टनर।
वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, तो हमको ब्रिक्स के भी कुछ कमिटमेंट्स है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि हम यूएस को भी इस तरीके से डील करें कि नहीं, इट इज अ कंट्री विच वी वांट टू गो हॉस्टाइल. हम लोग वी आर कॉन्फिडेंट दैट विल सॉर्ट इट आउट विद द यूएस. Wonderful. Bakr Sahab, Article 370, 6th anniversary celebrations. What has happened in Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर को प्रगति के राह पर, डेवलपमेंट के राह पर, वंदे भारत, चिनाब, किस प्रकार से देखते हो? बट कांग्रेस क्रिटिसाइजेस, कांग्रेस का क्रिटिसिज्म है. बट हाउ डू यू सी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, 6 years of आर्टिकल 370 एब्रोगेशन? बाकर साहब, देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो हमारे भारत रत्न है, उन्होंने संविधान में एक देश में भारत का संविधान अलग हो या कोई प्रांत पे अलग हो, ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था. तो मेरा ऐसा कहना है कि मोदी जी और जो अमित शाह जी और बीजेपी सरकार ने 370 हटाने का काम किया है, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्वप्न था, वो पूरा किया. तो एक देश में दो संविधान, दो निशान नहीं चल सकते. अब देखिए, 370 हटने के बाद आप देखिए पथराव की घटनाएं मतलब जीरो हो गई है. आतंकवादी जो हमले हैं वो ऑलमोस्ट 90% कम हुए. जो आज आतंकवादी हमला हुआ उसका भी जवाब बहुत कड़ी तरीके से दिया गया. कश्मीर की जनता इतनी खुश है क्योंकि टूरिज्म, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट सब हो रहा है. आप देखिए, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो कांग्रेस के पार्टनर है, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मोदी साहब आने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे आप रेल का नेटवर्क ले लो, चाहे ब्रिजेस का ले लो, और आज आप टूरिज्म के आंकड़े निकालो सर, कितने ज्यादा टूरिज्म के 2 करोड़ के ऊपर के टूरिस्ट आप कश्मीर में गए. तो ये जो बिजनेस का उनको फायदा हुआ है. आज जो लाल चौक है या जो श्रीनगर है, जहां पाकिस्तान के झंडे लगते थे, आज वो हर घर तिरंगा के झंडे लग रहे हैं. तो आज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आज भारत का अविभाज्य अंग था, और आज एक्चुअल रियल सेंस में अंग हो गया, क्योंकि इट इज लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ आवर कंट्री. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट 370 के बाद पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पूरा शांति है और टूरिज्म है, ग्रोथ हो रही है. मेरा यही मानना है कि आज इतना बड़ा डिसीजन मोदी साहब ने लिया, और तब कांग्रेस पार्टी उसके क्रिटिसिज्म में खड़ी रही और वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको हमेशा की तरह इनके जो नॉन इश्यूज को नकारा कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. मुझे ऐसा लगता है 370 हटाना इस तरीके का हिस्ट्री चेंजिंग डिसीजन जो मोदी साहब ने लिया है, प्रेजेंट जनरेशन ने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की और हिंदुस्तान की आने वाली कई जनरेशन और इतिहास के पन्नों में मोदी साहब और अमित शाह जी का नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है अभी कि इन्होंने ये काम किया. अदरवाइज कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टी या इनके जो सीएम है अभी उमर अब्दुल्ला, उनके फादर का फेमस स्टेटमेंट है कि आज कुछ भी हो जाए ये हट नहीं सकता, तो मोदी साहब ने वो करके दिखाया. I am very happy that all our Kashmiri brothers are now completely integrated in the country in real sense. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि खून की नदियां बहेंगी, ऐसा बोला था. और जी, आज भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा. He still maintains his statement. Terrorism will never go from Kashmir. That's what he says. Farooq Abdullah is very And he is difficult. playing to the gallery and he is playing to his constituency. Does he know whom he is playing to? I mean, I am not sure anymore. Very frankly speaking, फारूक साहब अभी ठीक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है. बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन he is sometimes he goes completely haywire. Anyway, let me go across to Gopal Tiwari साहब. राजू जी, just उसके पहले I may have to leave at 7:45. 7:45. All right. मराठी चैनल पे डिबेट. All right, sir. There are 25 minutes left, so we'll come back to you. And I am also, by the way, I am going to ask you about what the Supreme Court said with regard to Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi's reply on that. Gopal Tiwari ji, we are a democracy, right? लोकतंत्र हम लोग, सारी सरकारें जो हैं वो चुनाव चुन के आती हैं. अब ये पहली बार मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, ही सेज व्हाई यू स्पीकिंग लाइक एन एंटी नेशनल राहुल गांधी को. सर ये क्या है? गोपाल तिवारी जी इस पे कमेंट करेंगे? आपसे पूछ रहा हूं सर. सर अपना ऑडियो तो ऑन कीजिए. सर आपका म्यूट पे फोन. गोपाल तिवारी जी. हाँ तो ठीक है ना. हाँ, तो इतनी कौन सी पहाड़ गिर गई सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जी बोलिए सर. तो जानबूझ के जब मैं बैठा हूँ तो म्यूट अनम्यूट करके ही बैठा हूँ सर. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए बैठा हूँ. जी बोलिए. ज्वाइन हो रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं पार्टिसिपेट होऊंगा तो बोलूंगा सर. तो आपके बड़े आपसे निमंत्रण है, आमंत्रित करते हैं आपको पार्टिसिपेट करने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए. बोलिए ना सर प्लीज. आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? आपके जो टेक्नीशियन है उन्होंने कहा था मेरे को कि आप अनम्यूट कीजिए. उनको डिस्टर्ब हो रहा है. जी 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 बोलिए सर, बोलिए बोलिए प्लीज.
तो It's a सर pleasure ऐसी having बात you on है the show, कि sir, always. कोर्ट तो बोलिए। अपने अपने समय कई बार कई लोगों को अपनी अपनी राय रखता है। जी। इट डजंट मीन कि वो हमेशा हर किसी को सूटेबल होती है। अभी जो बात है जो उन्होंने कहा कि आप कुछ जानकारी, तो ये बिना जब देखे जब मोदी जी ने कहा था कि ना कोई गुस्सा है ना कोई ये हुआ है, तो वो कौन सी प्रैक्टिकल बात थी? जब जयशंकर और राजनाथ सिंह ने उनके खिलाफ मतलब एडमिट किया था, तो ये हर किसी की बात है। अच्छा, उसके बाद जो चाइनाज ने कितने हजार स्क्वायर फुट जमीन जो है फिंगर 4 टू फिंगर 8 एक्वायर की थी, और हमारे कई सारे लोग जवान 20 जवान उस समय मारे गए थे, उस समय भी सवाल उठाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजों में से किसी ने अपनी राय रखी है, तो उनको ये बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप वास्तवता के आधार पे बोलो। जब हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके भैंस लेके जाएंगे, ये एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को शोभा थोड़ी देता है। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखनी चाहिए कि भाई आप कौन से आधार पे बोल रहे हो, क्या आधार है आपके पास। लेकिन नहीं है ना, ये तो फिर मीडिया का तो काम है कि कौन सी चीज परे रखना, लोगों के जी, दुरुस्त बात। सामने अवगत कराना। इट इज डिपेंड ऑन मीडिया सर, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तो मीडिया ही है। तो वास्तवता से जो है वो तथ्य रखिए। अभी तो हाई कोर्ट ने भी कहा था, जो संभाजी नगर में राइट हुई थी 1-1.5 साल पहले, जब अजित पवार हमारे महाविकास आघाड़ी के साथ थे, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि फडणवीस सरकार और शिंदे सरकार कुडंट कंट्रोल द रायट, आप नपुंसक हो क्या, ये अजित पवार ने हमारे साथ रहते हुए बोल के बताया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी मर्डर हुई। जब दिल्ली मेयर का चुनाव हुआ था, तो दिल्ली मेयर का चुनाव के समय जो हेराफेरी हुई थी, और चंडीगढ़ मेयर और दिल्ली मेयर, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे। तो ये कौन सी बात है बड़ी? तो वो सर, जो चंडीगढ़ सुप्रीम में, कोर्ट अपने चंडीगढ़ में। तथ्यों से है, और देश के सामने जनता को भी पता है कि क्या सत्य है और क्या वास्तविकता है। तो गोपाल जी, इसका मतलब गोपाल जी, ट्रम्प जब कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी सेज यस आई न्यू इट, द होल वर्ल्ड नोज इट, इंडिया आल्सो नोज इट, इंडिया दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। मगर आईएमएफ, बीजेपी ने पूरा लिस्ट निकाल दिया। आईएमएफ कह रहा है द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 6.2 से 6.4 प्रोजेक्शन कर दिया है इंडियन इकोनॉमी का। $81 बिलियन का एफडीआई है, मार्केट कैप 136% ऑफ द जीडीपी ना। एक एक आंकड़ा, सुनहरी आंकड़ा लेके सामने खड़ा कर दिया कि कौन सा डेड इकोनॉमी। वी आर अ बजलिंग इकोनॉमी, अ फुल ड्रिवन इकोनॉमी, फुल ऑफ पावर एंड थ्रस्ट। गोपाल जी सर, सिंस वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसीलिए हमने आज़ादी का जंग लड़ा था और हमें भारत को आज़ादी मिल गई है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो लोग हैं भारत के, उनके हित में इकोनॉमी का जो भी फोकस है, जो इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, जो गेन है, जो रोजगार मिलना चाहिए, जो महंगाई काबू में रखनी चाहिए, ये सब बातें। और मतलब जो जीडीपी है उसके साथ पर कैपिटा इनकम का उसको गेन होना चाहिए। हमारी देश की संपत्ति, जो राष्ट्र की संपत्ति थी, 140 करोड़ जनता की थी, वो 140 जनता की करोड़ की संपत्ति अगर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में जाए, तो कौन सी मतलब क्या है वो, कहाँ चल रही है हमारी इकोनॉमी। और उसका अगर फायदा होता है लोगों को, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट रेशो कम होता है, महंगाई कम होती है, हमारा रुपया का स्तर है, वो जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय बोल रहे थे, जब 58 रुपीज 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपीज 58 रुपीज था, तो आज तो 80 के ऊपर, 90 के ऊपर तो जा रहा है। तो फिर क्या, कहाँ है इकोनॉमी? वो डेढ़ मतलब वो कैसे मान ले? इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके समझाना चाहिए हमको। हम समझने के लिए तैयार है, लेकिन वो उनको तो अकाउंटेबिलिटी तो कोई परे रखते नहीं उनके लिए, अपनी जिम्मेदारी से तो भाग रहे। वो एक
सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे सुब्रमण्यम से लेके सभी तो छोड़ के चले गए सर। इट्स अ शेमफुल थिंग। जो आपके प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर है वो रिजाइन देके चले जाते हैं। सो गोपाल तिवारी जी, आरबीआई के गवर्नर है जी, वो जी। छोड़ के चले जाते हैं। 70 साल में आरबीआई की जो गंगाजली थी उसको पहली बार हाथ लगाया आपने। तो ये कौन सी तो कौन सी गोपाल तिवारी जी, बात इन है योर जो आप ओपिनियन, बोलते हो? in your opinion, India is a dead economy. Is that what you're saying? Do you agree with Mr. Trump? Sir, do you agree with Mr. Trump? क्या मुझे पूछा? आपसे पूछा सर। तो क्या आप ट्रंप साहब से सहमत हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है? उन्होंने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, तो डू यू एग्री विद दैट वो सर? तो फिर जो बताना तो राहुल जी ने बता ही दिया ना जी। उस समय। राइट, और सो क्या? ओके, और मेरे मतलब जो भी हमारे संसद में जो हमारे नेता है प्रतिपक्ष जिनको चुन के दिया लोगों ने, और 2014 से 24 का जो देश का हालात देख के भी हमारे सीट दुगने किया है, तो वो उनके आधार पे बोला है तो उसके ऊपर बहस करें सत्ता पक्ष और जी। समझाए हमको। वी आर रेडी टू मतलब हम Yes. संसद में चर्चा करें उसके wonderful. ऊपर। That's a wonderful सभी- suggestion. That's a wonderful suggestion. I hope it happens. I hope there is a और, free and और, fair और वो discussion. होता है तो वी विल बी एग्री ना। Yes. हम खुशी से एग्री करेंगे। Correct. वो कैसे है क्या है राज्यसभा और लोकसभा में बताइए हमको, चर्चा कीजिए। ये डेमोक्रेसी है सर, कोई अपना आप कोई लीजे से लेके नहीं आए हैं। जी, लोगों ने दुरुस्त बात। 5-5 साल के So लिए let's चुन go के across दिया to है। द्विवेदी साहब। आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जी, द्विवेदी साहब, उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री जी से मिलने को आ रहे हैं दिल्ली। आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रियंका चतुर्वेदी जी आज मिलने गई मोदी जी से। उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हैं कि हाउ शी सो हैप्पी एट द फैक्ट दैट शी मेट द प्राइम मिनिस्टर। सर, कोई नए कुछ समीकरण उत्पन्न हो रहे हैं क्या? उद्धव जी एनडीए में वापस आ रहे हैं सर? द्विवेदी साहब, देखिए, बजाज जी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना हमारी उद्धव ठाकरे जी की जी या बिल्कुल। शरद पवार जी की या कोई भी नेता भारतवर्ष का जो भी नेता है उसकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। हाँ, उनकी नीतियों का विरोध है। भाई 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार चली, इसी लोकतंत्र के तहत, इसी प्रजातंत्र के तहत मनमोहन सिंह को क्या क्या कहा गया कि बाथरूम में कपड़े बदल रहे हैं, मुंह पे उंगली रखे हुए हैं, चूड़ियां भेंट की जा रही थी। जब हमारा पेट्रोल डीजल 50 रुपए में था तब चूड़ियां भेंट की जा रही थी। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, हम क्योंकि विपक्ष हैं। ये संविधान के अंदर एक निहित वो वाक्य है कि एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। इतने सांसद आपके हैं तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, इतने विधायक आपके हैं तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो बाकी लोग होंगे वो विपक्ष में बैठेंगे। तो ये संवैधानिक अधिकार हमारा है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का और उनके साथ बातचीत करने का। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब उद्धव ठाकरे अगर मिलने जा रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी मिल रही, तो एक वहां पे गाइडलाइन बन रही है कि नहीं साहब हमको ज्वाइन करना। भाई देवेंद्र फडणवीस ने भी तो बुलाया था ना, 4-5 मुलाकातें हुई है। देवेंद्र फडणवीस अभी भी चिल्ला रहे हैं, जबकि बीजेपी शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी। अभी वो कह रहे हैं सब हमारे पास आएंगे। तो जो कि जान रहे हो ना कि जिनको उन्होंने तोड़ के जो लाए हैं वो कितने आज्ञाकारी है या वो कितनी देर इनका सहयोग कर सकते हैं। जब तक मलाई खाने को मिल रही, मलाई खा रहे हैं, 50 होके एकदम होके तो गद्दारी करके अपने आ गए। लेकिन उद्धव ठाकरे का अपना व्यक्तित्व, अपना जो उनका व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व किसी छिपा हुआ थोड़ी ना है। उनका व्यक्तित्व जो पूरे महाराष्ट्र में है, एक लीडर के रूप में, एक शांत स्वभाव, शांत प्रिय लीडर के रूप में है। और सिख ईसाई जो भी धर्म, हमारे सभी धर्मों को एक समान देखने वाले मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा नहीं है कि मिलने से कोई ऐसी बात है।
मिलना जरूरी है, मिलना चाहिए भी। द्विवेदी जी। ये तो मेरा मतलब कहता हूँ। द्विवेदी जी, मगर क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी सैफरन टेरर और डेड इकोनॉमी, भगवा आतंकवाद और इकोनॉमी नष्ट होना, इस पे कुछ न बोलकर एकनाथ शिंदे जी ने क्लियर कट ऑब्जेक्शन उठाया, बोले राहुल जी को इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, पाकिस्तान का भाषा बोल रहे। सैफरन टेरर पर क्लियर, भगवा आतंकवाद पे एकनाथ शिंदे जी ने स्टैंड ले लिया कि भगवा आतंकवाद कभी नहीं हो सकते। मगर क्या उद्धव ठाकरे जी इस पर कमेंट करने से, रुकने से वो फिर मैसेज गए कि आप हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए? द्विवेदी जी, क्या मैसेज चला गया, नहीं चला गया? भगवा आतंकवाद है। भगवा आतंकवाद कहाँ है? सिर्फ 7 लोगों गिरफ्तार, 140 करोड़ जनता में हम 7 लोगों गिरफ्तार कर लिया हमने। अब भगवा आतंकवाद तो बीजेपी खुद उठा रही है क्वेश्चन। जैसे महाराष्ट्र में हिंदी विरोधी हो गए विपक्ष के नेता, उद्धव ठाकरे हिंदी विरोधी हो गए, फलाना शरद पवार जी हिंदी विरोधी हो गए, कांग्रेस हिंदी विरोधी हो गए। तो ये तो भाजपा है ना, भाजपा के पास आजकल सब कुछ है। आज सीबीआई भी है, ईडी उनके पास है। भाई ईडी के 121 केस उन्होंने दर्ज किए, राजनीतिकों के खिलाफ 121 केस दर्ज किए, जिसमें 115 केस जो है वो अपोजिशन के खिलाफ है। सीबीआई ने 124 केस दर्ज किए पॉलिटिशियन के खिलाफ, जिसमें 118 केस जो है वो अपोजिशन के खिलाफ है। तो 2014 से पहले कितने मुख्यमंत्री जेल चले जाते थे, कितने सांसद जेल जाते थे? एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल गए, और अपने हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? हाईकोर्ट ने टिप्पणी की साहब इन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप तो मिल ही नहीं रहे। तो इस तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट कर रहा है ना, हम नहीं कर रहे हैं। जो भी आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, वो सीबीआई ईडी में निरंतर दिए दबाव बनाए हुए कि सही केस आप दर्ज करिए, सही लोगों को देखिए पहले। तो देखिए राजनीतिक विषय है, राजनीतिक बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए आप कि इस देश में 2014 से पहले का देख लीजिए, 2015 की बात देख लीजिए। 2014 से पहले अगर 50 रुपए हमारा डीजल था, तो आज 100 रुपए डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जिसमें हमको 250 रुपए, 450, 250 सब्सिडी मिलती थी हमको। तो आज 1000 रुपए हो गया गैस सिलेंडर का दाम। तो ये कहाँ सब्सिडी हमको मिल रही है? आज इकोनॉमी में आप कह रहे साहब बहुत नंबर 3 हो गया, नंबर 1 बन गया, इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर, अच्छी बात है। लेकिन डॉलर का रेट तो 90 रुपए हो गया ना, गैस का रेट तो हो गया 1000 रुपए हो गया ना, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए ना। यह महंगाई आप देख लीजिए मार्केट में, आप सर्वे करा लीजिए कि मार्केट में सर्वे करा लीजिए कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2014 से पहले, उसके बाद क्या कंटिन्यूस इफेक्ट आया मार्केट में, क्या इफेक्ट आया आपको मालूम चल जाएगा। हम लोग तो देखने वाले हैं ना कि मार्केट में क्या इफेक्ट आया। अब आइए युवाओं को रोजगार 2 करोड़ नौकरी परियार हम देंगे, ये हमने नहीं कहा था ना, ये भाषण में माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जब हम 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे 2 करोड़ नौकरी परियार हम देंगे। कितनी दे दी गई, कितने लोगों को भला हो गया? बात देखिए ये नहीं है। आप आज ट्रम्प की बात ले लीजिए, आप यही ट्रम्प है जब हम नमस्ते ट्रम्प भी कर रहे थे। गुजरात में पूरे सड़कों में बैरिकेडिंग लगा दी गई, पर्दे लगवा दिए गए, पूरा कुछ दिखाई ना पड़े, करोड़ों रुपए खर्च किया उनके आंदोलन में। हम ये नहीं मना कर रहे नहीं खर्च करना चाहिए था, खर्च करना चाहिए था, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय इफेक्ट क्या आया? अभी 40-45 उन्होंने जो दिए हैं कि यहाँ पे भारत में महिला सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी ज्यादा बढ़, तमाम ऐसे 10-45 पॉइंट उन्होंने दिए। अभी 2 महीने पहले आया वहां से। तो ये चीज क्या है भाई? Right, so Dwivedi ji, let me ask Bagre Saab. Dwivedi ji, let me ask Bagre Saab. Bagre Saab, the latest IMF report says that the Indian economy, they've upgraded the Indian economy and they've said that the Indian economy will grow at about 6.4% in 2025 and probably at the same rate in 2026. World Bank report of course says it will grow at about 6.6%. साथ में Christine Lagarde, who is at the moment the chief economist of the European Union, she has said that as far as Trump is concerned, Mr. Trump is possibly going to be harming the American economy much more than anything else.
because as she says IMF has about 191 countries, 191 देश हैं, और सभी 191 देश अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. Nobody can bully anybody. Let's be very clear. वही आज हिंदुस्तान का हाल है. आज की तारीख में Mr. Trump wants us to open all our agriculture and consumer and food sectors कि किसी तरीके से अमेरिकन products वहां पर आ जाएं. What he doesn't realize is that even within America, people are not buying American products. Now, what's going on here? Who's advising him? What do you think? समीर भागे साहब ट्रम्प साहब को एडवाइस कौन कर रहा है? क्योंकि उनके खुद के इकोनॉमिस्ट अगर आप पढ़ें, who are not part of the Make America Great Again यूनिवर्स, दे आर सेइंग कि आपकी टैरिफ पॉलिसीज की वजह से आखिर में नुकसान जो होगा वो अमेरिका का होगा. बागे साहब. सर आपने एकदम सही कहा, और अपोजिशन पार्टी के मेरे दोनों वरिष्ठ जो साथी है उन्होंने ट्रम्प साहब को मोदी जी ने और बीजेपी ने सपोर्ट किया. तो भाई साहब हम जब वो हमारे देश के फेवर में बोल रहे थे तो बीजेपी और मोदी साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे, और जब हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े रहेंगे. तो कांग्रेस पार्टी या जो अपोजिशन पार्टी है जब वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, और जब देश के फेवर में बोलते थे तो उनके खिलाफ बोलते थे. तो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का तो मैं मजाक में ऐसा कह सकता हूँ कि अंदर गए तो भंडारा खत्म हो गया और बाहर आ गए तो चप्पल चोरी हो गई. तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड से इनको तकलीफ आ रही है, क्योंकि पहले ट्रम्प साहब को सपोर्ट इसीलिए कर रहे थे कि सीज फायर उन्होंने ट्रेड डील के भरोसे किया. अब जब ट्रम्प साहब टैरिफ्स की बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है. तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप किस तरीके की राजनीति करना चाह रहे हैं. दूसरी बात ऐसा है सर, इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन ऑल बिग इकोनॉमीज. ये तो आज देखिए, मैं संजय भाई को भी सुन रहा था, आज आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं संजय भाई, सबसे निचले स्तर पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा है. आज इतने सालों से आप देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पे है. तो महंगाई आपके दिमाग में ग्राउंड पे नहीं है. दूसरी बात ऐसा है, इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है सर ऐसा है, देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, चाहे रोड्स देखिए, चाहे एयरपोर्ट्स देखिए, चाहे ग्राम सड़क योजना देखिए, हाईवेज देखिए, एग्रीकल्चर देखिए, सर्विसेज देखिए. और आज अगर पूरे दुनिया का एफडीआई भारत में आ रहा है, देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा. जब एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की तो ट्रम्प साहब ने उनके जो सीईओ है उनको टिम कुक को थ्रेटन किया था कि अगर आप इंडिया में बनाएंगे तो हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे. लेकिन टिम कुक साहब ने कहा है फिर भी हम इंडिया में बनाएंगे बिकॉज दैट इज स्टिल चीपेस्ट. राजीव जी मैं आपको एज ए इकोनॉमिस्ट एक बात बोलना चाहूंगा कि जो अमेरिका की स्थिति है ये आज एक दिन में नहीं हुई है. दिस इज अ सिस्टमिक फेल्यूर. उन्होंने पहले चाइना को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर करके चुना, इंडिया को सर्विसेज पार्टनर करके चुना, और धीरे धीरे जो अमेरिकन इकोनॉमी थी, जो इनका डिफेंस का जो प्रोडक्शन और इसी में चलती थी, दुनिया में जो वॉर्स कम हुए तो अमेरिकन इक्विपमेंट बिकना कम हो गए. और दूसरा आप देखिए इसके बाद भी दुनिया में बाकी अल्टरनेट डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो गई, और भारत जैसे देश ने तो खुद की डिफेंस आत्मनिर्भरता लाई है. सो अमेरिकन इंडस्ट्री विच वॉज डोमिनेटेड बाय बिग टेक, इट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय बिग टेक एंड डिफेंस. सो आज जो नॉर्मल अमेरिकन कंपनीज है दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव, उनके प्रोडक्ट्स ही कॉम्पिटिटिव नहीं है. और सर कुछ मेरे फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने आंकड़े देख लीजिए, इन्फ्लेशन इज इन यूएस इज स्काईरॉकेटिंग लाइक एनीथिंग. जो टैरिफ लगा रहे ट्रम्प साहब, उसके नतीजा ऐसा है कि उनके गुड्स तो इंपोर्ट यूएस करना ही. I think we've lost He it. got stuck. He's got stuck. Bhagya Sahab, are you there? Yes. Go ahead, sir. Go ahead. हिंदुस्तान में फोर्ड बंद हो गया. मुझे ऐसा कहना कि हिंदुस्तान में फोर्ड बंद हो गया. और बाकी आप देखिए कि अमेरिकन जो सिस्टमेटिक फेल्यूर है, एक बड़े इकोनॉमिस्ट ने आज ये कहा है कि आप अमेरिका को समझना चाहिए कि अमेरिकन एम्पायर इज ओवर. हम ये नहीं मानते कि अमेरिकन एम्पायर इज ओवर. अमेरिका इज अ स्टिल बिग कंट्री. इट इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, एवरीथिंग. बट आई कैन से वेरी वेल जो इतने सालों का पतन है वो आज सामने आ रहा है. जी. Bakre Sahab, I want to ask you one और thing. मोदी जी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर अगर हिंदुस्तान में है तो अपने देश के लोगों की चिंता पहले करेंगे. यही ऑब्जेक्शन है कांग्रेस का. कांग्रेस इज ऑब्जेक्टिंग द सेम थिंग, दैट डिप्लोमेटिक फेलियर. बाकरे साहब, डिप्लोमेटिक फेलियर जो शुरू किए थे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार,
जयराम रमेश एंड पूरे उनके जितने डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली इस फेलियर पे हाईलाइट कर दिया। आपको इतना करने की जरूरत क्या था? व्हाई डू यू हैव टू गो ओवरबोर्ड विद हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार? क्या आप डिप्लोमेटिक फेलियर मानते हो उसको? बाकरे साहब सर मैं तो पहले चाहूंगा कांग्रेस पार्टी एक बार क्लियर कर ले कि वो ट्रम्प साहब के हर स्टेटमेंट के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अभी देखिए, यूएस प्रेसिडेंट के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, तो उसमें अगर इंडियन डायस्पोरा के कोई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मोदी साहब के भाषण होते हैं, तो आज तो ये सिर्फ यूएस में नहीं होता ना, आप यूके में देखिए, आप यूरोप में देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, आप अफ्रीका में देखिए, तो इंडियन डायस्पोरा इज डोमिनेटिंग एवरीवेयर। सो मोदी साहब अगर ट्रम्प साहब भारत देश के फेवर में बात करते थे, अगर उनकी तारीफ करना है, उनके ऑनर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो दैट इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। आज अगर ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ लगाया, तो क्या उसके बाद भी भारत सरेंडर हुआ है? ये देखना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर और एसएमई को भारत प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं अच्छा चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ये देखे कि मोदी साहब जब किसी के साथ खड़े तो कौन से चीज के लिए खड़े हैं। देश के लोगों के भलाई के लिए हम ट्रम्प साहब के साथ खड़े थे। आज भी आई फील दैट गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन मिस्टर ट्रम्प एंड ही विल हैव अ गुड ट्रेड डील विद अस, जैसे यूके में हुआ। यूके में इकोनॉमी नहीं है सर जी, बट बाकरे साहब, 1 second. Ford had said they're getting out of India. Ford said that they are getting out of India. Can you hear me, sir? आपको आवाज आ रही है मेरी सर, बाकरे साहब? आ रही है। तो फोर्ड ने ये कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं. They had to come back. They suddenly realized they can't do without India. I believe Chevrolet is also, that is GM, is also reconsidering its decision to get out of India. They're coming back. Number 3, Tim Cook साहब ये बोलते हैं कि even if the tariffs go up by 30%, manufacturing an iPhone in India will be far cheaper than manufacturing it in America. And जो अभी फैक्ट्री लगाई है, they are making a new factory, by the way, a huge new manufacturing unit is coming up in Uttar Pradesh of Apple, Foxconn, and that will cater almost exclusively to the American market. आज भी 80% of the iPhones available in the United States are finally assembled in India, by the way. That's what is happening. So, and number 2, which is very important, which people don't usually look at, हाल ही में मेजर इवेंट हैपेंड, बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था जिसको लोग शायद मिस कर गए। इसरो और नासा ने हमारे इसरो के रॉकेट को GSLV-2 को यूज किया था टू लॉन्च द निसार सैटेलाइट, which is the most sophisticated, most advanced satellite in the world. नासा और इसरो की जो कोऑपरेशन से लॉन्च हुआ है। नंबर 2, GE, General Electric, have just agreed to supply Tejas Mark II with their engine, which they had been stalling for about 4 years, by December. दिसंबर तक वो इंजन आ जाएगा। तो बाकरे साहब, एक तरफ तो कोऑपरेशन और ज्यादा हो रही है, दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ये सब कर रहे हैं, कुछ जरा समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द मैसेजिंग व्हिच इज गोइंग ऑन? आई स्टिल कांट फिगर दिस आउट। Maybe you can throw some light on it. What does that mean? देखिए ट्रम्प साहब जो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ा है पूरे दुनिया में, so now he is getting caught in his own trap. He wants to live up to his reputation that I am going to penalize every country, as if that US is the जी can't hear you sir. आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बाकरे साहब, I think you have a net problem. I think we've lost Mr. Bakre. Are you there, sir? Bakre Sahab, are you there? Or can we go to Gopal ji? Right, so let's go to Gopal Tiwari. Gopal Tiwari ji, Gopal Tiwari ji, द्विवेदी जी आपको बता दो, गोपाल तिवारी जी, अमित शाह जी ने कहा हम पाकिस्तान को अब डोसियर नहीं बेचते, हम ब्रह्मोस बेचते। गोपाल तिवारी जी, ब्रह्मोस बेचते। और आज जिस प्रकार से एनडीए के पूरे पार्लियामेंट्री मीटिंग था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का सराहना किया। बोले प्राइम मिनिस्टर ने जबरदस्त घर में घुस के मारने का जो साहस दिखा दिया, पूरे दुनिया ने देखा। वही आलोचना बीजेपी का प्रणति शिंदे का कमेंट पे, प्रणति शिंदे जी ने कहा कि ये पूरा ड्रामा है, ऑपरेशन सिंदूर एक ड्रामा है। किस प्रकार से आप देखते हो गोपाल जी, कैसे डिफेंड करोगे आप? तिवारी जी,
Gopal ji. सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने कई बार डिबेट हो चुका है और हम वही बातें दोहरा रहे कि भाई ये सब होना है, तो ये जो हमारी सिक्योरिटी क्यों फेल हो गई, सिर्फ हमें आर्मी का ही श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी का श्रेय हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। प्रियंका जी ने भी ये कहा, आप जरूर श्रेय लीजिए उसका, सिंदूर का, लेकिन व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी? अगर इतने लोग, अगर आपने अभी कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर बीजेपी हमारा भारत का अंग है, तो वो तो पहले भी था सर, और बार बार उसके बारे में भी अभी भी पंडित नेहरू और कांग्रेस को ही दोष दे रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद है। और ये जब हमारा 370 हम भी चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि जो संविधान में लिखा है कि वहाँ की जनता, वहाँ के जम्मू कश्मीर के असेंबली में उसके बारे में सोचे और अपनी राय बताए, और हम 370 उठाए। लेकिन अभी ये सरकार तो जम्मू कश्मीर और अपनी इनकी जो थी पीडीपी के साथ, वो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया, और एक लाइन का जो रेजुलेशन दिया था गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही सत्यपाल मालिक तो फिर आज उनका निधन हो गया सर, भी बोल रहे थे कि सर उनको श्रद्धांजलि, आज उनको श्रद्धांजलि देने का टाइम आ गया। हमारी गलती है। तो हमारी कश्मीर सुरक्षित कहाँ है अभी जनता वहां की? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने उस समय आपने जब हुआ तो आपको उसकी कोई गंभीरता नहीं, आप सऊदी अरेबिया से चल के आए और गए तो हंसी ठकान और ठहाके लगाते थे आप बिहार में, रैली अटेंड की। और जब हमारा नेता राहुल गांधी वहां पे पहलगाम में गया, उन्होंने जो शहादत मतलब जिनकी जिंदगी गई उनसे मुलाकात की, वहां तो मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जाना चाहिए था। तो फिर ये और मतलब आपका एक डिप्टी सीएम कहता है कि पूरी भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, तो ये तमाशा नहीं तो क्या है सर? और आपका जो आई थिंक गोपाल तिवारी जी, आई थिंक समीर बागरे साहब हैज टू गो, जो राज्यसभा सदस्य वो कहता है कि क्या वहां की औरतें क्या वीर गंगा नहीं थी, वो कैसे रोते बैठी, अरे उन्होंने तो कैसे ये करना था। वहां का बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अगर कहता है तो ये तमाशा नहीं है क्या सर? और गोपाल तिवारी जी, आपके जो वन सेकंड सर, गोपाल तिवारी जी, लेट मी कंप्लीट सर, समीर बागरे साहब हैज टू गो, अदरवाइज आई डोंट नो, लेट मी कंप्लीट। मेरे को थोड़ा कुछ एक ऐसा जो मैं बात रख रहा हूँ वो पूरी करने दीजिए। बोलिए सर। आपके जो वहां के शाह है जो विजय शाह, वो कहते हैं मध्य प्रदेश के, आप देखो दहशतवादी जो सोफिया कुरैशी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छी तरह से सेना का पक्ष रखा, और उसको कहते हैं आप कि देखो आप हम उसको बहन बताते हैं आतंकवादियों की। देखो हमने कैसे मुस्लिम एज अ मतलब ये तमाशा नहीं तो क्या है सर? और so, अकाउंटेबिलिटी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे, नॉट अ सिंगल कोई आप उसको अकाउंटेबल उसको पकड़ रहे, तो इतने लोग आने किलोमीटर अंदर आते हैं। कैन वी आस्क बागरे साहब, can we ask Bagre sahab, because he has to go, which is why I am stopping you, I apologize. I'll come back to you again, Gopal Tiwari ji. Bagre sahab, the point is everybody wants to know, Vijay Shah sahab को आपने अभी तक मध्य प्रदेश के कैबिनेट से बाहर क्यों नहीं किया? He should have been thrown out. Number 2, ये शख्स जो है राज्यसभा का, वो बोलता है कि वहां पे कोई वीरांगना नहीं थी क्या? क्यों रो रहे हो आप? और वहां पर अटैक करना चाहिए था लोगों को, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर ये क्या है? सर देयर हैज टू बी सम एक्शन। अभी तक वी वर वेटिंग कि विजय शाह साहब को मध्य प्रदेश की सरकार से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने अपोलोजाइज किया है, बट डू यू थिंक एन अपॉलजी इज इनफ? राइटफुली स्पीकिंग ही शुड हैव बीन थ्रोन आउट। अगर मान लीजिए शूज ऑन द अदर फुट, आई पुट इट टू यू बागरे साहब, कर्नाटका के किसी मिनिस्टर ने यह कहा होता, तेलंगाना के किसी मंत्री ने यह कहा होता, हिमाचल प्रदेश के किसी मंत्री ने कहा होता, सर बीजेपी ने तो नाक में दम करके रख दिया होता। आप बताएं बागरे साहब, व्हेन इज मिस्टर विजय शाह रिजाइनिंग? बोलिए सर। देखिए, मैं तो पहले भी आपके शो पे विजय शाह जी का कंडेमनेशन किया है, उन्होंने अपोलॉजी मांगी है विच कोर्ट हैज नॉट एक्सेप्टेड, और आप देखिए स्टेट की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया है, इंक्वायरी, और उनको जो भी
कानून के हिसाब से वो सजा मिलेगी। मैं लेकिन देखिए आई एम नॉट सेइंग अबाउट वाटर बैटरी, लेकिन जब विजय वडेट्टीवार जी बोलते हैं कि भाई आतंकवादियों को इतना समय है क्या कि धर्म पूछ के मारेंगे, आज ये कांग्रेस पार्टी के गोगोई जी और अरे वो सर, संजय राउत बोल रहे हंसी हैं, संजय राउत बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के नहीं मारा है, जबकि जो विक्टिम्स है उनकी वाइफ्स का स्टेटमेंट है कि धर्म पूछ के मारा है। जी। संजय राउत जी तो बोल रहे हैं इसी कि कारण भाई ये आप नहीं तो कर रहे, आतंकवादी ऐसे भी भटके बताओ हुए ना, लोग हैं, ये इनको स्टेटमेंट है नहीं। इसलिए हम नहीं कर रहे, बताइए आप। नो इशू, आप बताइए कि विजय वडेट्टीवार गोपाल और जी आप संजय राउत देखिए, का स्टेटमेंट है इसलिए आपके हम उनके गोगोई साहब ने खिलाफ कुछ कल जो कार्रवाई नहीं पॉडकास्ट में करेंगे, कहा है कपिल बताइए सिब्बल ना। के साथ, कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने क्या कहा वो तो सुनिए। गोगोई जी आपके ये लोकसभा में लीडर है बड़े, तो उन्होंने कहा है कि धर्म पूछ के ऐसा मारा नहीं है। संजय राउत है वो उनकी एक जर्नलिस्ट जो आज राज्यसभा की सांसद बनी हुई है, और कपिल सिब्बल साहब जो आपके पार्टी की सब केसेस लड़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इस तरीके की और ये करेगा राजीव जी आर्गुमेंट, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं भी I hope so. चाहता हूं कि विजय शाह जी के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया लेना जाए, चाहिए। I और agree. मैं वी डोंट सपोर्ट एनी सच एक्टिविटी। Right, sir. But there is one other thing which I want to know from you, जनाब सर, ऐसा है कि जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, अभी अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, गोपाल तिवारी जी ऑफ कोर्स सेड बाय माय लीडर इज ऑलरेडी सेड सो, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने क्या कहना था वो भी ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की, वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है सर। जो ऑपरेटिव ऑर्डर था दैट इज कम इन राहुल गांधी फेवर। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट, ही हैज ग्रांटेड द स्टे टू राहुल गांधी। तो ये आप जो है सर, आप सिलेक्टिवली यू डू सलामी स्लाइसिंग और चेरी पिकिंग, ये एक स्टेटमेंट ले लिया और आपका आईटी सेल जो है उसके बारे में पूरी बात करता है। Why don't we talk about the order? Supreme Court has actually ruled in Rahul Gandhi's favor. I know you have to go one final statement and then you can go, sir. One final comment on this. देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से जाके हारेंगे, हर बार इनको माफी मांगनी पड़ती है, चाहे राफेल हो, चाहे चौकीदार सर, यहाँ तो माफी नहीं मांगी किसी ने। तो देश के फेवर में कभी गवर्नमेंट को क्यों नहीं टारगेट करते, देश के फेवर में क्यों नहीं टारगेट करते, हमेशा देश के खिलाफ ही क्यों टारगेट करते हैं। So this is, sir, I have to leave now. Right, thank you very much, Bhagre Saab. All the best to you. Thank you for joining us. We have to go to Gopal Tiwari Saab. Gopal Tiwari Saab was saying something. Let him finish. जी गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी बार बार हर जगह पे, हर मीडिया हाउस में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी नेशनल बुलाया राहुल गांधी को, एंटी। अरे दो आर ओरल ऑब्जर्वेशंस यार। सर ऑपरेटिव ऑर्डर इज ऑल एक्शन टू बी स्टेड, नो एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट राहुल गांधी। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड। गोपाल तिवारी जी अब आप बोले। सर सही है, हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने ये जो बताया है, तो एक हमारी कहावत है सर, तो बोले तो बहू को लगे, ऐसा शायद है कहीं पे। तो अगर ये जो बोलते हैं कि आप किसके इस आधार पे बोल रहे हैं, चाइनीज ने हमारी इतनी जमीन ली, उतनी जमीन ली, उन्होंने सुनाया, लेकिन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। रूलिंग पार्टी के लोग भी अगर ऐसे है, तो आप किस आधार पर बोलते हैं चाइना ना घुसा है, ना कुछ हुआ है, ना कैसे है। यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। आप तो चौकीदार हो भारत के। और ये जब शाह जी बोलते हैं, उस समय, अरे उस समय हमारी क्या थी सर, 62 में 60 में हम 10 साल का जन्म हुआ जो बच्चा रहता है, हमारे सेना कितनी सक्षम थी, हमारे टेक्नोलॉजी से हम कितने सक्षम थे, हमें सैटेलाइट, एयरप्लेन और जो भी हमारे संसाधन थे क्या। तो आप किस आधार पे बोलते हो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। उस समय नेहरू जी ने, अरे उस समय बॉर्डर भी डिसाइड नहीं हुई थी सर भारत और चाइना की। तो आप किस आधार पे ये तथ्यों पे बात करते हो। ये सिर्फ अकेले राहुल जी को नहीं है, भले ही वो राहुल जी के संदर्भ देके उन्होंने बात की कि आप किस आधार पे बोलते हो। तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। अमित शाह भी है और मोदी जी भी है और राहुल जी भी है। द सुप्रीम कोर्ट सेज, तो ये इनको क्यों नहीं लागू होता कि भाई आप ये जो दो बात करते बार बार, उस समय हमारी क्या सक्षमता थी, हम
जब बॉर्डर भी नहीं डिसाइड हो रही थी हमारी तिब्बत और लद्दाख की, उस समय हमारी क्या सक्षमता थी? ये सब बातें, हमारी सेना भी कितनी हम इतनी आज जो हम आत्मनिर्भर है, उस समय हम नहीं थे, तो कुछ बातें हुई। तो इसका मतलब वही बातें दोहरा के आप अभी के जो सक्षम इंडिया आपके हाथ में जो आया है, जी। आप जो रूल करने जा रहे हो, जी। भले ही हम नहीं कहते कि आपकी कितना उसमें आजादी के इसमें कंट्रीब्यूशन था, एक सावरकर छोड़ा तो कोई एक नॉट अ सिंगल, फिर भी आप जो कांग्रेस ने आजादी दिलाई है 2014 में, आपने ये नहीं कहा था कि आपने अच्छे सपने बताए थे, अच्छे दिन के 2 करोड़ रोजगार के, इतना काला धन है कि जो लेके आएंगे और 15-15 लाख लोगों को देंगे। यू कुडंट फुलफिल सिंगल 11 साल में ना एक सिंगल भ्रष्टाचार पे आपने किसी के ऊपर एक केस दर्ज किए हो तो बताइए। फॉरगेट कांग्रेस, एनसीपी, राष्ट्रवादी, अजित पवार, शिवसेना, जो भी है, आप कॉम्प्रोमाइज नेचर है आपका, और आपको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के से आधार पे रिश्वत ली है। चंद्रचूड़ जो आपके खास मित्र थे, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक का मर्डर हुआ, जो मेयर का चुनाव हुआ था दिल्ली का, मैंने अभी सर दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ का सर, तो चंडीगढ़ बातें है, तो उसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। सर, चंडीगढ़ आपने जो इकोनॉमी की जो हालत हुई है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है सर। आज 4.5 गुना, 4.25 गुना कर्जा हो चुका है भारत का। गोपाल जी, आज तक 70 साल में इतना लाखों करोड़ रुपया चूना लगा के कोई भारत से भाग नहीं पाया था। पृथ्वीराज चौहान, 60-65 साल में आज तक इतना एनपीए जब बढ़ा था ना, तो हमारे तरफ उंगली बताते हैं, अरे भैया आप एक उंगली बताते हो तो 3 उंगलियां आपके पास आती है। अगर 3.5 लाख के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2016-17 में, और बहुत ही अच्छा फेमस हुआ था, मराठी पेपर, न्यूज़पेपर सकाल में मैंने लिखा था खुद। तो 3.5 लाख करोड़ आप एनपीए था बोलते हैं, और आपने तो 14 लाख करोड़ कर दिया। तो मतलब क्या? मतलब 3.5 लाख करोड़, तो आप सीधा बताइए ना। आपको हम बोलते कि भाई आपका जो शाह है वो ऐसे क्यों बोल रहे, आप बोलते हैं वडेट्टीवार, तो आप बताइए कि वडेट्टीवार इसलिए बोल रहे, इसलिए हम ऐसा बोल रहे। तो आप एक तो जस्टिफाई करना है तो खुली तरह से कीजिए, हम कहाँ बोलते जी, ये कोई तरीका है सर? और 70 साल में आज इतना, मतलब भारत देश जो आतंकवादी है उनको ये बात समझ में आई है, उन्होंने मतलब दुगनी चाल चली है। उनको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो कम्युनलिस्ट, जो कम्युनल जो विचार है उनको फेवर करता है। तो ये तो अपने आप एक छोड़ दो, ताकि वो अंदर से गोपाल जी, मगर पृथ्वीराज, आप हमें कुछ करना ना पड़े। आप कम्युनल बोल रहे हैं गोपाल जी, आप कम्युनल बोल रहे हैं। मिले हैं देश के जनता को, पृथ्वीराज चौहान, परिपक्व है, मैच्योर्ड है। पृथ्वीराज चौहान जी आज भी वही कह रहे हैं कि भगवान नहीं बोलना चाहिए, मगर सनातन और हिंदू टेररिज्म बोल सकते हो आप, सनातन बोल सकते हो, हिंदू बोल सकते हो, मगर भगवान मत बोलिए। ऑपरेशन महादेव क्यों है, ये क्यों आप हिंदुत्व वाले टैगलाइन देते हो हर ऑपरेशन को, ऑपरेशन महादेव? तो मोदी जी ने कहा हर हर महादेव, हम तो किस प्रकार से, क्या आप अपीसमेंट नहीं, क्या तुष्टीकरण नहीं कर रहे हो बार बार ये बोल के? गोपाल जी, पृथ्वीराज चौहान जी का स्टेटमेंट। सर तुष्टीकरण का कोई सवाल नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि महादेव जी के नाम से अगर ऑपरेशन किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात रखने के लिए मिस्री सामने आए थे, हमारी जो सोफिया कुरैशी सामने आई थी, और भी कोई ऑफिसर सामने आए थे, और उन्होंने बताया था यस वी हैव डन दिस, और ऑफिशियली बाकायदा बताया। तो वही ऑपरेशन अगर सेना के कुछ लोगों ने किया तो वही मस्ट सैल्यूट, लेकिन उन्होंने सामने आके क्यों नहीं बताया ऑपरेशन क्यों, कि ये आतंकी हमने मारे हैं। और मारने की क्या जरूरत थी? वो अगर उनको पकड़ के उनको फांसी पे लटकाते थे तो अच्छी तरह से, और भी उनको अपने मौत के दिन गिनते थे। वो सब लोग जूते मारते थे उनको, सब लोगों के सामने उनकी परेड निकालते थे। आपने सीधा ठोक दिया, और आपकी भाषा भी क्या है, ठोक दो। अरे व्हाट, अरे ये कॉन्स्टिट्यूशन है,
आपको कुछ है तो जैसे कसाब को पकड़ के उसके ऊपर मुकदमा चलाया, आपने वैसा क्यों नहीं किया? आपने जो आतंकवादियों को मारा तो उनके ऊपर मुकदमा। अच्छा, ये बात महादेव की अब किसी ऑफिसर के सामने, किसी अफसर ने सामने आके क्यों नहीं बताई? सीधा सवाल है, सीधा। ये अमित शाह जी और जो न्यूज आई है वो सभी न्यूज सूत्रों के हवाले। अरे सूत्रों के हवाले तो हमने ये भी सोचा कि कराची पे हमने झंडा लगा दिया, हमने इतने ये कर दिया, हम तो लाहौर में चले गए। तो सूत्रों के हवाले से ये हमें अगर आतंकवादियों को मारते हैं तो हमारी सेना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना के जांबाज अधिकारियों ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था, ये क्यों नहीं बताया? अगर ये आतंकवादी मारे गए तो उनकी पहचान क्यों नहीं बताई जब आपके पास डिजिटल और सब कुछ रिपोर्ट था? तो ये जी बात है। दुरुस्त। द्विवेदी जी, आपके पास एक सत्यपाल मलिक थे। द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, सत्यपाल मलिक भी भगवान को प्यारा हो गए। तो जिसको आप लेकर कहते थे कि मोदी का करप्शन एक्सपोज करेंगे, मगर जाते जाते सत्यपाल सिंह जी ने वो आईसीयू से लिख के रखा कि मुझे 150 करोड़ का ब्राइब ऑफर। इसमें कुछ टिप्पणी करना चाहते हो क्या? क्या सत्यपाल सिंह का जाना आपको नुकसान हो गया? द्विवेदी जी, देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं द्विवेदी जी बहुत समय से shall I leave? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू सर। Thanks a lot. गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो अपने बयान दिए डंकी के चोट पे दिए, उस पर शायद हमारे समझ में बीजेपी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी या पूरी बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई खंडन नहीं निकाला, कुछ इस तरह की बात नहीं की। एज ए राज्यपाल में अगर बयान दे रहा है रिटायर होने के बाद, उस बयान में कोई खंडन भी नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा था साहब कि जो अगर सैनिकों के हेलीकॉप्टर या दूसरी चीजें भेजा जाता या जो वहां पर 10-15 दिन जो टहलता रहा आरडीएक्स, वो क्यों कैसे टहलता रहा, तमाम चीजें उन्होंने कही अपने बयानों में। तो निश्चित है मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ सर कि उनका परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और इस तरह की बात जो उन्होंने कही उसको जनता को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। कि भारतीय जनता पार्टी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 2014 के बाद से आप देख लीजिए, 2014 के बाद से विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना, 2014 से पहले का देख लीजिए, नफरत की राजनीति जी। सबसे बड़ी बात है, नफरत की राजनीति। आप दिल्ली चुनाव देखिए, आप पश्चिम बंगाल चुनाव देखिए, आप ये अभी जो निशिकांत दुबे जी ने कहा, नीतीश राणा ने बयान दिए, या पश्चिम बंगाल में चुनाव होते उसमें जो बयान दिए जाते थे, तो ये क्या था सर? ये क्या है? ये चीजें निश्चित आप मान लीजिए, ये वही चीज है जो देश में नफरत पैदा करे, देश में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करे। तो इस तरह की जो भाषा विभाजन पैदा करें, आप अगर एक वर्ग को बार बार आप कहेंगे नहीं साहब इन्होंने गलती, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित नफरत पैदा होगी, विभाजन की बात, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी देश में। तो मैं ये चाहता हूँ सर, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, चाहे कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने, सरकार किसी की भी हो, आप माने हमने मनमोहन सिंह की सरकार भी देखी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी देखी, उससे पहले तमाम प्रधानमंत्रियों की सरकार देखी गई। चाहे भले इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन ना हुई हो सर, लेकिन हर प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के लिए कर्ज भरे ले लिया हो, लेकिन जनता को जो सुविधाएं दी, जनता को जो रियायतें दी, जो जिस हिसाब से उन्होंने दाम कम करके पेट्रोल डीजल बांटा, या रसोई गैस बांटी, या महंगाई देखी, या बेरोजगारी पे देखा कि उन्हें हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूलों की स्थापना की गई, प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, तमाम ऐसी योजनाएं बनाई गई जो शायद गरीबों के लिए थी। द्विवेदी जी, देख लीजिए। द्विवेदी जी, एक बहुत बहुत अहम सवाल है, मेरे लिए तो बड़ा अहम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है या कोई और सरकार रही, नॉन बीजेपी सरकार जो भी रही है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी, कोई भी उसमें एग्जेम्प्ट नहीं है, कोई भी, सभी नेताओं ने सरकार से हर किस्म का सवाल पूछा है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, भले वो फौज से संबंधित हो, भले वो सुरक्षा से संबंधित हो, कुछ भी हो। आज तक
किसी भी गैर बीजेपी सरकार ने बीजेपी के किसी नेता को देशद्रोही नहीं बोला, एंटी नेशनल नहीं बोला है। यहां पर तो एक सवाल पूछते हैं सीधा एंटी नेशनल हो जाते हैं। ये क्या है? मतलब जो भी कोई भी सवाल पूछता है आज की तारीख में सरकार से, भाई आप एंटी नेशनल हो या चले जाओ पाकिस्तान। ये क्या मान रहा है द्विवेदी जी? मैं बजाज जी में इसी तो बात कर रहा था। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज धारा 370 आपने हटा दी, अच्छी बात है। आप तीन किसान बिल लेके आप आए। आप देखिए कि शुरू से लेके इनकी सरकार में जो अकाली दल था, उनके मंत्री ने विरोध किया। उन्होंने कहा था मुझे समझा दीजिए एक बात, पूरा विपक्ष विरोध करता रहा। लेकिन क्या हुआ आखिरी में माननीय मोदी जी ने उस तीनों बिलों को वापस ले लिया। उसके चक्कर में कितनी डिबेटें हो गई, कितना समय बर्बाद हुआ देश का, 700 किसानों का बलिदान हो गया। तो क्या इस तरह से देश चला जाता है? ये आप देखिए अभी जो जनगणना वाली बात थी, जाति जनगणना की बात, क्या मोदी जी ने स्वीकार नहीं किया क्या? और उस पर तमाम डिबेट में देखता रहा। राहुल गांधी जी हैं तो उनको अपना बताना चाहिए, ये कहना चाहिए। यही नकारात्मक ऊर्जा जो फैलाई जाती है, ये आप देखिए 2014 से लेकर 2025 तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी कोई हवा में नहीं आ गई थी, वो संविधान के दायरे में इमरजेंसी लगाई गई थी और राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर करके दिए थे। अगर कोई कागज राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वहां प्रधानमंत्री या दूसरे की कोई मतलब ही नहीं है। भाई कोर्ट में जज ने सजा दे दी, जज ने साइन कर दिए तो वो सजा हो गई ना। अब उसने इफेक्ट वर्ड कहां से आ गया था? तो अगर राष्ट्रपति जी ने कहा नहीं था इमरजेंसी लगनी चाहिए और 270 में हारी, 80 में 353 सीटें लेके अगर इंदिरा गांधी जीती हैं 1980 में, उसके बाद बराबर कांग्रेस सरकारें भी नहीं है, तो इमरजेंसी क्या मतलब है? इमरजेंसी हत्या कर दी गई, ये हो गया। अब आइए आप इनकी बात करिए, द्विवेदी जी आपने डूबे जी, निशिकांत डूबे जी के बात किए, फडणवीस जी के बात किए। निशिकांत डूबे जी और एक बात कहा कि उद्धव राज के जो पॉलिटिक्स है वो लोकल बॉडी चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। भाषा का जो राजनीति कर रहा है टोटल दोनों डूबने वाले हैं। और फडणवीस साहब ने आगे जाके कहा कि कोई भी मिलने दो, उद्धव राज दोनों मिलने दो, आएगा तो मोदी ही आएगा, तो बीजेपी और महायुति ही। किस प्रकार से दोनों का स्टेटमेंट देखते हो द्विवेदी जी? देखिए, लोकसभा चुनाव में कौन जीता सर? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बाकी प्रदेशों में क्या हुआ? ठीक है, इनकी अपनी गढ़ चुकी महाविकास अघाड़ी पहली बार चुनाव लड़ रही थी तो हो सकता हमारे सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी हो गया। जैसे एक नागपुर ईस्ट कौन सी सीट थी जिसमें कांग्रेस वाले हमारे विरोध कर रहे थे, मतलब टिकट गड़बड़ हो गया था, तो हमारा पहली बार गठबंधन था। उस हिसाब से अगर देखा जाए हमें सीट कम मिली, लेकिन जो लोगों का प्यार मिला, भाई हमारे पास तो ना चुनाव चिन्ह था ना हमारा नाम था। तो उसके बाद अगर 11% वोट आते हैं, 20% हमारे विधायक जीतते हैं, तो शायद मैं जनता को सैल्यूट करूंगा सर कि इतने होने के बाद भी हमको इतना मिला। ठीक है, हमारे परसेंटेज में गड़बड़ी हो गई, जीत गया, लेकिन आप जीते किस वजह से? आपने कहा लाडली बहन योजना हम 2100 रुपए देंगे, आपने कहा शिव भोजन थाली हम देंगे, आपने कहा कि हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे 60 साल ऊपर वालों को, आपने कहा किसानों को हम कर्जा माफ करेंगे, आपने कहा 25 लाख नौकरियां हम देंगे, आपने कहा किसानों की ऋण माफ करेंगे, आपने कहा कि साहब हम जो है बिजली बिलों में कटौती करेंगे, बिजली बिल भी माफ करेंगे, तब वृद्धावस्था पेंशन देंगे। आज स्थिति क्या हो गई सर? हमारा देश तो ट्रिलियन में घूम रहा है, लेकिन इन योजनाओं को लागू करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन में घूम रही है, लेकिन हम 14 लाख करोड़ जो भी हमारे पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे कर्ज, सबसे ज्यादा कर्ज हमारे पास भारत देश में आज हो गया। तो ये कर्ज सब कहां से आ रहा? मैं एक आम नागरिक की तरह सोचूं, एक बिल्कुल निचले स्तर की तरह सोचूं कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो रही है देश की, तो ये कर्ज कहां से आ रहा है? और 85 से 90 रुपए के बीच में हमारा ये डॉलर का रेट क्यों जा रहा है? तो डॉलर रेट तो 40 रुपए जाना चाहिए सर। अगर हम इतनी अच्छी इकोनॉमी में जा रहे हैं तो डॉलर रेट हमारा कम हो जाना चाहिए। या पेट्रोल डीजल के दाम जो है
वो हमारे कम हो जाने चाहिए। जी सर, वो तभी कम होंगे क्यों नहीं हो पा रहा? सर। वो देखिए, रशियन यही बातें जो हैं, सर, ये वो बात तो रशियन मैं ऑयल कह जो रहा हूं। खरीद रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है जो रशियन ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं सस्ते में खरीद रहे हैं, लेकिन वो प्राइस का एडवांटेज जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कीमतें वही रखी है, उसकी तकलीफ वहां पर ही आ रही है। क्योंकि सर तो गलत नहीं है क्या ये? तो सर रेवेन्यू नहीं है देश सरकार। की जनता के लिए नहीं, देश की जनता, भाई आप कहते हैं मनमोहन सिंह ने कर्ज लिया था पेट्रोल के नाम से, अगर उन्होंने कर्ज लिया, सरकार ने चुकाया, तो जो जनता हमारी थी, सर, 130 कर्ज करोड़ नहीं जनता लिया। होगी, उसमें तो 20 करोड़ जनता होगी, उनको सुख सुविधा दी ना। आज जिसके 15,000 रुपए तनख्वाह है, या महंगाई आप देख लीजिए, उस महंगाई से, पेट्रोल डीजल से, तमाम चीजें जो महंगाई, तमाम चीजें बढ़ जाती ना, उसे खर्चा चलने के मुश्किल होगा या आसान होगा। लेकिन मैं एक चीज को आपसे पूछता हूं संजय द्विवेदी जी, चलते चलते आप ये बता दें कि देखिए जो आप कह रहे हैं उसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है, कोई वाद विवाद, कोई विवादित बयान तो आपने दिया नहीं। ये बिल्कुल ठीक है कि नौकरियां नहीं है, हालत खराब है लोगों की। ये बिल्कुल ठीक है कि छोटे लघु उद्योग जो है वो काफी बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं जी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आज की तारीख में डॉलर की जो कीमत है वो 87 रुपए 80 पैसे है, 87 90 है, ऐसा कुछ है। तीसरी चीज, किसी शहर में पेट्रोल जो है 106 रुपए का है, कहीं 104 रुपए का है, कहीं 103 रुपए का है, कहीं पर डीजल जो है 95 रुपए का है, 100 रुपए का है, 102 रुपए का है। ये सब बातें हैं। फिर भी बीजेपी को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है सर? और मुझे इतना याद है, और ये मैं बात जवाब दे रहा हूं। सर पूरी बात सुन लीजिए। और मुझे इतना याद है एक जमाने में जब दाल की कीमत, तूर दाल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो जाती थी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर के रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस की नाक में दम कर देते थे। आज की तारीख में सर तूर दाल 144 रुपए की बिक रही है, 144 रुपए किलो। जो हाई क्वालिटी की तूर दाल है ना, वो 144 रुपए किलो पे बिक रही है। मैं कहता हूं एक मोर्चा मुझे दिखा दीजिए जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने निकाला हो, या कांग्रेस ने निकाला हो, या एनसीपी शरद पवार ने निकाला हो। बिल्कुल ऐसे लग रहा है सब सो गए। तो बीजेपी तो जीतेगी ना सर, अगर आप सब लोग सिर्फ फेसबुक और ट्विटर खेलेंगे तो क्या होने वाला है? अब आप बोलें। नहीं, मेरी बात सुनो। आपने जो बजाज जी जो बात कही जी कि बीजेपी क्यों जीत रही है, जी, आपको याद होगा 2004 में इसके बाद जब 2009 के चुनाव हुए जी, तो इंडिया साइनिंग चल रहा था जी, कितना तेज हिसाब से चल रहा था 2004 में। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया साइनिंग ये तमाम चीजें चल रही थी। क्योंकि मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि साहब मैं इसके बाद अब मैं नहीं बनूंगा। यहाँ पे मैं कांग्रेस की गलती दूंगा कि वो अपने अंदर अगली लीडरशिप तय नहीं कर पाए जी। आप देखिए बीजेपी ने 65 साल तक इंतजार किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आप छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी सरकारें बनी वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनी, क्योंकि उनके पास लीडरशिप उस समय थी। या सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को तैयार किया, लीडरशिप बनाई, तो अगला चुनाव वो जीत गए। लेकिन चूंकि जब मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा साल भर पहले इस्तीफा दे रहे थे वो कि साहब इस बीच किसी को मना दीजिए आप, तो हम इस्तीफा दे देते हैं। नहीं सुने ये लोग। तो आज जब देश के सामने ये आया कि साहब लीडरशिप इनकी नहीं है, लीडरशिप में कमी है, तो दिक्कत तो आया। बीजेपी की तरफ आदमी झुका और इन्होंने तमाम ऐसे वादे कर दिए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, आपकी महंगाई की मार, आपकी मोदी सरकार, तमाम ऐसी इन्होंने योजनाएं अपनी ले ली, जो धीरे धीरे इनकी योजनाएं खराब हो गई। अब 2019 चुनाव देख लीजिए, जो वहां पे अटैक हुआ, 44 हमारे जवान मारे गए, उसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया हमारे मीडिया ने भी, हमारे सोशल, उसमें उत्तर विपक्ष पीछे रह गया और उन्होंने उसका बात बोल दिया। अब आइए आप 2024 चुनाव में 70 सीटें कम हो गई सर। क्यों कम हुई? जो कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर 40 से ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी, वह 100 के करीब पहुंच गई। क्यों? जब उन्होंने ना 2014 में ना 2019 में कोई गठबंधन नहीं किया, अकेले चुनाव लड़ने, अकेले जूझने चले गए, अकेले लड़ने मैदान में उतर गए। अरे भाई आप देखिए कि आज जो समाज हमारा बदल रहा है, देश की जनता बदल रही है, देश की जनता के विचार
क्या होने जा रहे हैं, क्या नहीं होने जा रहे हैं। आपके पास लीडरशिप नहीं है। आज अगर 2024 में चुनाव अगर बिना इंडिया गठबंधन के लड़ा होता तो 40 से फिर रह जाते ही लोग। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे विपक्ष हो चाहे जो भी हो, अगर आपको इस देश में रहना, देश में अपनी अपनी बात को साबित करना है, अपने चीज देनी है। अब आप देखिए अभी हरियाणा चुनाव हार गए, महाराष्ट्र चुनाव हार गए। मैं एक बात कहूंगा, महाराष्ट्र चुनाव के लिए अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता तो क्या होता आप समझ लीजिए। ये हरियाणा में पूरे विपक्ष लेके अगर लड़ाई लड़ी जाती तो क्या रिजल्ट आते। तमाम चीजें ऐसी मैं बता सकता हूँ कि जो कमियां रही कांग्रेस का वो अगर अहंकार, कांग्रेस अपने अंदर बदलाव नहीं करेगी, कांग्रेस देखिए, का अपने अहंकार अंदर हमेशा उनके बदलाव खिलाफ नहीं काम करेगी करता है। तो कांग्रेस निश्चित रूप से सबसे संजय बड़ी द्विवेदी पार्टी जी, है। द्विवेदी जी, कांग्रेस को सबके साथ चलना पड़ेगा। अगर वही बात मैंने कही आपसे, बिल्कुल दुरुस्त बात कि है, कांग्रेस को आपकी बात से दिल्ली सब लोग चुनाव सहमत हैं सर। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जी। दिल्ली चुनाव क्यों हार गए? करेक्ट दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल हरा दिया जी। इन्होंने और ये अपनी पीठ से दबा गए। फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। ये कोई नेता नहीं सोचा दिल्ली का। मैंने दिल्ली चुनाव होने के बाद तमाम नेताओं की भाषण सुनी है सर। अगर कांग्रेस तो खुशियां मना रही थी, गठबंधन में कांग्रेस खुशियां मना रही थी 0 सीट्स के लिए, 0 सीट लाने के लिए। सर मैं वही तो कहना चाह रहा हूं आपसे ना, आप 0 सीट के लिए खुशियां मना रहे हैं। जी, आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे भाई? चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते थे आप? तो अगर ये मानसिकता लेके आप चलेंगे तो बीजेपी जीतेगी सर, जैसे पहले कांग्रेस जीती थी। 65 साल कांग्रेस जीतती रही इन्हीं चीजों को लेके। भाई सोनिया गांधी पहली नेता ऐसी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिन्होंने गठबंधन पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया और उन्होंने 2004 में भी गठबंधन किया, 2009 में भी गठबंधन किया और सरकार चलाई उन्होंने, जबकि सरकार अल्पमत में थी। 2009 में सरकार बनी थी, 2014 तक जो चली है वो अल्पमत में थी और उसके बाद उन्होंने सरकार चलाई। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, अगर इस तरह की चीजें जो है अगर आप नहीं लेके चलेंगे इस देश में, आपको अपना विजन देना पड़ेगा ना कि हम क्या लेके चलना चाह रहे हैं या हम क्या करना चाह रहे हैं। दुरुस्त बात है सर। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ, बातें ऊट-पटांग स्टेटमेंट देना, ऊट-पटांग जी दुरुस्त बात है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इतनी मीटिंग हुई, अब नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, लगता है कुछ होने वाला है। राहुल गांधी जी से ज्यादा मिल रहे हैं। उनका जो प्रोग्राम तय है राहुल जी से में, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी से कहा साथ डिनर लंच जो भी डिप्लोमेसी है उद्धव जी करेंगे वहां पर। क्या ये बदलाव कुछ होगा इंडिया अलायंस के? मैंने प्रदीप जी बजाज जी, मैंने पहले आपसे कहा एक बात कि जो मैं शिवसेना के नाते बता रहा हूँ सर आपसे, 35 साल का मेरा अपना इतिहास है शिवसेना में। जो बीजेपी ने काम किया सर, जिस तरह से बीजेपी ने पार्टी को तोड़ा, 50 होके एकदम रोके करके सीबीआई ईडी का दर दिखा के पार्टी तोड़ी, और जिस तरह से संगठन चुनाव आयोग के माध्यम से शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव आयोग को जो अधिकार होता है वो चुनाव चिन्ह का अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने पार्टी भी दे दी उनको। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया और महाराष्ट्र की जनता ने जो 11% वोट दिया, 20 सीटें थी, वो हमारे समझ में, मैं उनको सलाम करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने इन विषम परिस्थितियों में लोकसभा में और विधानसभा में माननीय उद्धव ठाकरे की साख को बरकरार रखा। जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए खलबली मची हुई है कि साथ में ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में उद्धव ठाकरे या कांग्रेस एनसीपी का प्रादुर्भाव हो जाए, बढ़ जाए और हम पीछे चले जाए। ऑपरेशन टाइगर द्विवेदी जी खत्म नहीं हुआ। अब प्रियंका जी जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर से मिले, क्या ये नेक्स्ट ऑपरेशन टाइगर है जो एकनाथ शिंदे जी लॉन्च कर रहे हैं? देखिए हमारे लीडर्स हो, जो मैंने आपको पहले कमेंट में बता दिया था आपका कि प्रधानमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, ये तो एक औपचारिक भेंटें होती हैं, बातचीत होती है। बहुत चर्चा चल रहा है प्रियंका जी एकनाथ शिंदे जी के हाथ थामने वाले ऑपरेशन टाइगर। लग रहा नहीं, एकनाथ शिंदे क्या करेंगे सर, क्या नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे समझे वो मुख्यमंत्री थे, हम तो खुद इतना दुखी उनके लिए हैं, क्या बताएं, दिल रो रहा मेरा। मुख्यमंत्री बेचारे बनने गए थे कि मुख्यमंत्री बनते रहेंगे जिंदगी भर जब तक बीजेपी रहेगी। लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने, दिए गए, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक अच्छा काम किया।
आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। विभाग भी उनको नहीं मिले, विभाग भी नहीं मिले उनको। सर जो शिवसैनिक होता है काम बहुत अच्छा करता है, जहां मर्जी होता है, जिस मर्जी पार्टी में होता है बहुत अच्छा काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात के साथ जो है सब अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10-12 सेकंड और लेंगे मैं, जो भारतीय जनता महाविकास अघाड़ी जब बनी है तो एकनाथ शिंदे का नाम उद्धव ठाकरे जी ने दिया था। माननीय शरद पवार जी और ये लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए उद्धव एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जिसमें से अशोक चौहान जी अभी बीजेपी के साथ है जी। अशोक चौहान जी ने भी अपडेट किया था, उनकी सेटिंग 2.5 साल बैठ गई, तब अपने लोगों को लेके वो निकल गए। और शिवसेना प्रमुख हिंदुस्तान सम्राट बालासाहेब ठाकरे गद्दारों से हमेशा कहते गद्दारों को लात मार के भगा देना चाहिए। हम जितने हैं हम उतने अच्छे हैं, हमें ज्यादा वो नहीं चाहिए, बिगड़ की नहीं ज्यादा हमारे पास। एकनाथ शिंदे कोई बात, जब सीएम थे तो बोला मैं कॉमन मैन हूं, अब डीसीएम है तो वो डेडिकेटेड कॉमन मैन हूं। द्विवेदी जी इतने प्यारा भाषा। In any event, as far as Eknath Shinde Sahab is concerned and other people are concerned, I think finally some change will take place. Uddhav Thackeray ji, I think will have to work out a few things, क्योंकि मीरा रोड में, बाकी वसई में, हर जगह पे शिवसेना के जितने लोग हैं वो सब चले गए दूसरी तरफ। तकलीफ हो गई बड़ी, ये कल की बात है। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी पार्टी को लेकर के, जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। ठाकरे जी निर्णय लें, हम उसमें नहीं कर सकते, जी दुरुस्त बात है, अपने पिताजी के नक्शे कदमों पे चलना पड़ेगा। अब जो चल रहा है सर, सर बहुत सभ्य तरीके से चल रहे हैं, इतना सभ्य नहीं होना चाहिए आदमी को। सब शुरू से सर, मेरी मुलाकात उनसे, आपकी मुलाकात होगी, वो ऐसे ही साल सुबह के शुरू से रहे सर। जी 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 बिल्कुल। हम तो 20-22 साल से मिल रहे हैं उनसे, ग्रेट प्लेजर। जब 20-22 साल के थे माननीय उद्धव ठाकरे, तब से हम उनसे मिल रहे हैं। वो शांत स्वभाव में शुरू से रहे जी, सरल स्वभाव, शांत स्वभाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों के साथ बात करने के लिए, शो में आने के लिए। बहुत दिनों के बाद देखे द्विवेदी जी। जी थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट। जय बुलाएंगे तो हम आएंगे निश्चित। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राइट, तो चलते चलते आई थिंक वी शुड शो व्हाट प्रियंका गांधी वाड्रा हैड टू से विद रिगार्ड वेरी वेरी इंप्रेसिव, राहुल गांधी वेरी वेरी और सुप्रीम कोर्ट कॉन्फिडेंट की जो जजमेंट थी। कैन वी प्ले दैट प्लीज? यू गाइस से यू हैव इट, कैन वी जस्ट प्ले इट, व्हाटएवर यू हैव, दिखाइए। भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है, उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते। Very confident, absolutely confident. Yes, calm, quite nice. composed, Quite nice. very, very actively put forward her view, and that view will probably be accepted across India. Well, she's very, very, very clear. Most Yes. importantly, she's very clear, very simple, very straight. She's not complicated. कोई उल्टी सीधी बात नहीं करती. She doesn't go here, doesn't go there. And by the way, that she said quite a lot. We'll try and get the entire speech for you, maybe tomorrow. In the meantime, प्रियंका गांधी जी ने पूरा क्या कहा वो हम लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए कल। लेकिन फिलहाल जो प्रियंका गांधी ने बोला, बड़ा स्पष्ट, बड़ा साधारण, बड़ा सरल, बिल्कुल सरल भाषा इस्तेमाल करती है, बिल्कुल सीधी सादी बात उन्होंने बात कही। और कृपा करके अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू The fastest growing channel of the nation, Nation Now. जी हाँ, नेशन नाउ, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन। जी हाँ, और वो जो सब्सक्राइब की जो रिक्वेस्ट आती है वो अगर डाल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल पर अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स।
And as far as Mr. Trump is concerned, let's see what he does. He said 24 hours, so 24 hours will be over tomorrow. कल और कितने tariff बढ़ाएंगे? Will he take it up to 100% just like China? Well, he's Trump, he can do anything. And He's also elevating Modi's status at the same time. that's right, he's doing that. By taking on Mr. Modi the way he is. And Modi is absolutely composed, not retaliating in any way. Not replying at all. Yes, yes, yes. Not replying at all. And replying only through official means. Just like the statement has come today from the Ministry of Commerce. They have said that it is the Americans, in fact, who told India to buy oil from Russia to keep the oil market from becoming unstable. That's what the Indians have said very, very clearly. But anyway, that's as far as Mr. Trump is concerned, he only listens to himself. And it all depends upon what Trump thinks of the next day. This morning he'll think of something else, day after tomorrow he'll think of something else. Anyway, that's Mr. Trump. I hope he acts in favor of the United States of America. And as far as we are concerned, we know our Prime Minister will act only in favor of India. मतलब ट्रम्प साहब हो सकता है कि अमेरिका के लिए काम कर रहे हों, लेकिन हमें मालूम है कि मोदी जी सिर्फ भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें दीजिए इजाजत. कल मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार. Namaskar. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.